गुड आफ्टरनून चंद्रज्योति। गुड पहले आफ्टरनून। पहले राजशेखर सर इंटरेक्ट करेंगे, फिर मैं करूंगा, ठीक? ओके सर। गुड आफ्टरनून सर। आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश है ना? यस सर। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ. Sir, my name is Chandrajyoti Upadhyay. I was born and brought up in Ramgarh. I have done my high schooling from Agrishan DAV Public School. I have done my graduations in maths from Ramgarh College. Sir, my hobby includes watching web series, traveling, and cooking. So you have studied in DAV school. Yes, sir. Give a brief history of the DAV movement. Who was the founder Sir, of it? it was yes, sir. It was Arya Samaj established by Dayanand Saraswati in 1875. He was supporting caste. He was fighting against casteism, supporting women empowerment, and a widow remarriage, sir. So DAV movement started in northwest India, in Punjab area, and now has presence across India. DAV Yes, sir. schools are there? Oh, yes, sir. Yes. Achha. You have Yes. done your graduation in maths. Yes, sir. आपका थोड़ा सा ये नेट का स्पीड हल्का स्लो आ रहा है, हल्का सा, कोई बात. अच्छा. तो there is no Nobel Prize in maths. Maths में Nobel Yes, Prize sir. होता क्या है? Why there is no Sir, Nobel then- Prize in maths? Is there any particular reason behind it? Sir, I'm not very much aware about the basic reason, but there is other prizes, high honor prizes in maths like Field Prize and Abel Prize, I guess. Basically, Alfred Nobel in his Wasiyatnama did not mention about math, that it is not there. So the Nobel Prize money comes from the wealth of Alfred Nobel. So in his will, he has not written Yes, sir. about math. Okay. Now, what are the Indian Thank you, contribution of Indian ancient to till now mathematicians? Start from ancient Sir, time. okay, sir. Sir, there are many scholars and great mathematicians in ancient period. Sir Aryabhat, he was known as the most ancient mathematician as well as astrologer. He discovered the 365 days in year and the movement of 9 planets around the sun. Okay. Apart from that, sir, there is Sir Bhaskaracharya who wrote Siddhant Shiromani, and he gave the concept of means any number divided by infinity equals to infinity. After then, sir, there is Srinivas Ramanujan. He gave the concept of algebra. There is a number 1729, which is also known as Ramanujan number. After then, sir, Sakuntala Devi. She is called human computer. Tell us something about Sakuntala Devi. There is a movie also, I think, was made on Sakuntala Devi. क्या नाम था उस मूवी का? Sakuntala Devi Yes, sir. नाम है. Movie is also named as Sakuntala Devi, sir. So, the movie is based on the biography of Sakuntala Devi. on which area she contributed, Sakuntala Devi? Sir, she mainly contributed in the area of, I'm not very much aware, sir, but she was known for her fastest calculation in any type of the lengthiest calculation. Achha. What is the correlation between maths and AI? Sir, AI is basically, sir, in initial times, we used to calculate all the datas and analyze the datas with the help of maths, and we did it with ourselves only. But nowadays, AI is contributing in analyzing the data, calculating the data more accurately and more efficiently. So basically, you create a mathematical model of the problem and solve it there and then give the prediction. That is the context.
ठीक है, आप क्या कहते हो? You prepare Yes, a sir. mathematical model of the entire problem. ठीक है, mathematical problem is Yes, sir. solved. There are two terms. One is called neural networking, artificial neural networking, and machine learning. कुछ आइडिया है उसके ऊपर? Yes, sir. Sorry, sir, I'm not No, no very issue. much aware about it. अच्छा. There is a thing called Fibonacci number. Fibonacci number. कुछ आइडिया है इसके बारे में? Sorry, sir, I'm not able to hear. अच्छा, कोई बात नहीं. Fibonacci number, no, sir. Sorry, sir. अच्छा, रामानुजम जी का what was the contribution of Ramanujan in few key areas? One is your number, very good. Ramanujan number Sir, it- 1729 yes, sir. Sir, Ramanujan contributed in the field of algebra mostly. algebra. So analytical number theory is part of algebra. Analytical number theory. Sorry, sir, can you please repeat the question? Yeah. Analytical number theory. Which What number? is it? Analytical. Analytical number theory. Analytical number theory. What is it? Analytical number theory, sir. I'm not able to recall this at the moment. Okay, no issue, no issue. On what day we celebrate the National Mathematical Day? Sorry, sir, I'm not able to recall this Sure, no at the issue. moment. December 22. That is the birthday of Ramanujan number. Srinivas Ramanujan. What are Okay, natural thank you, sir. numbers? Thank you, sir. What are natural numbers? So natural numbers are the natural numbers are the numbers which includes negative numbers as well as the whole numbers. Sorry, sir, I'm getting it wrong. I'm actually giving the definition of real number. Natural numbers are the numbers which is the positive numbers, numeric like 1, 2, 3, 4, etc. हाँ, बस 7 हो गया, बड़ा नहीं. ठीक है, ऐसे नहीं जाने तो कोई दिक्कत नहीं उसमें. Yes, sir. You have Yes, done sir, your okay, sir. graduation in 2018. ठीक है. Are you Yes, doing sir. something after it, or you are preparing for civil service also? Sir, I was preparing for civil services only. You are preparing, okay. अच्छा. So Yes, sir. how you kept your morale high during this period? It is a long period, तो आपने अपने आप को boost up कैसे करके रखा इस period में? Sir, as my passion is highly situated towards civil services, so whenever I didn't get the result up to the mark, I always motivated myself for try for the next time. And for the with sir, basically my aim behind choosing the civil services are up to that much motivating that I keep myself reminding about my aims, and this kept me motivated throughout the period, sir. One of your hobby is traveling. So what Yes, kind sir. of so which is the latest travel that you have done in the recent times? Latest one. So recently I have visited to Salparni Lake. Where? Satparni Lake. Salparni Lake. Yes, sir. It is in which place? Salparni Lake is situated in Sir Hazaribagh Wildlife Sanctuary in Ichak area. Achha, it is inside the wildlife sanctuary. Okay. Yes, sir. So what are you like to travel? What is the difference between tour and travel? There are two terms, tour and travel. How traveling is different from tourism? Yes. There is a tourist and there is a traveler. How these two are different? Sir, traveling can be situated, traveling can include short distance traveling also, but tourism generally includes the places with high crowd. Some kind of long distance traveling also can be included in tourism. So what are the aspects that you look at when you are traveling? When you travel to a place or you are in the way Sir, you are traveling, what are the aspects that you yes, take sir. into account or look at?
Sir, I generally sees the greenery, beauty, and the aspect that can be done to increase the tourism in that sector. Okay, one is greenery, beauty, other aspect. Do you take into account human and social behavior? Human social behavior, sir, I didn't much get attracted with the human social behavior in some places wherever mostly I have gone. So I haven't focused. Okay. So, Good afternoon, Jyoti. Good afternoon, sir. आपका नाम चंद्र ज्योति. Who named you? Has given you name Chandra Jyoti? Sir, my father has given this name to me. What it mean? Sir, Chandrajyoti means moonlight. Moonlight. Chandra Jyoti. Moonlight. Anything Yes, else? sir. Yes. Um, Sir, moonlight, which signifies there is a ray of hope in darkness also. Very good. Why you left math after your Thank you, sir. graduation? Sir, I all after 12th, I thought of preparing for civil services, but I was also interested in maths. So I took maths as my graduation subject. But as I always wanted to prepare for civil services, I then left maths and started for preparing subjects like GS. Very good. What you learned from math? Sir, I have learned from math that there is always a solution of all the problem. Give some example. Sir, for How example, you are, if how you are using math for how you will use math for administration. okay, sir. Sir, for example, statistics, a subject of maths. Statistics can be used to analyze the data, compute the data about particular data about the tribals, women, vulnerable sectors. Uh, this is it, sir. वेरी गुड. इसको शुरुआत करो ना यहाँ से कैलकुलेशन से. एवरीडे जो रियल लाइफ कैलकुलेशंस है, you can't imagine your life without math. Whenever you go to vegetable market or some shopkeepers, you need math. उसके बाद इकोनॉमी में whatever government schemes is being managed by all statics, we need math at that time also, है ना. इस तरह से इसको थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ. Okay, जो सेकंड प्लान था वो नेहरू okay, महालनोबिस sir. प्लान था. Thank you. पीसी महालनोबिस थे ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस. One of the greatest Yes, sir. statistician, PC Mahalanobis was a statistician. तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो था नेहरू महालनोबिस प्लान. तो डेटा के आधार पे ही और डेटा प्रोसेस करके ही आप प्लान बनाते हो. क्या गरीबी है, क्या रिसोर्स है, क्या Okay. प्रॉब्लम है ना. उसमें मैथ का काफी बहुत यूज होता है. मैथ के लिए टॉप इंस्टीट्यूशन कौन कौन है, अगर कोई पूछे. मैथ के लिए लीडिंग इंस्टीट्यूशन There are IITs for आईटीज है, IITs इंडियन for स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, स्टैट के yes, इंडियन, sir. है ना, वो सब करना. ठीक है. ये सिविल Thank you, sir. सर्विसेज का ड्रीम कब आया आपको? When you realize that Sir, you when want to I be a was in civil class servant? 12th. Sir, when I was in class 12th. So why you have not taken other subjects which will help you in civil services preparation? Why only math? Because of interest. Yes, sir, because of interest also, and sir, there was lack of guidance because at that time there was not very much trend of online educations, and in my area, not very much of guidance regarding civil services was available. So I took maths only based on my interest, sir. सर इसमें इंटरेस्ट भी है, इसको lack of guidance भी था. How तो
तो जो जेन्युइन चीज़ है वो बोल रही है। हाँ, यदि कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ पर जो था, जो सब्जेक्ट हम पढ़े थे उसी को हम रखे। इंटरेस्ट मैथ्स में जेन्युइन है इसका? वो तो जब नंबर क्वेश्चन का तो जवाब नहीं बता पाई। तो नहीं हुई थी हमें। इंटरेस्ट है जेन्युइन मैथ्स में? सर इंटरेस्ट है, वो थोड़ा एक्चुअली टाइम गैप हो गया है ना, और इतने टाइम से जीएससी चल रहा है, तो मैथ्स को थोड़ा ओवरव्यू करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। मतलब मैथ्स ये में- हो सकता है कि बचपन में मैथ्स के लिए अट्रैक्शन हो, मैथ्स हम बनाते हो, मैथ्स हमसे बनता हो, तो सभी ने सजेस्ट किया कि हम मैथ्स लें, है ना? मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है का मतलब कि ऐसा मैथ्स से वो उम्मीद करेगा कि आप अच्छे-अच्छे जवाब दें। यस और नो? तो व्हेन I was in 12th, I was very good in math. My parents suggested to take math as a subject, है ना? Then in 12th class या in graduation, I realized that I need to prepare for civil services. तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट बोल दिए और मैथ में हम जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा-सा लगेगा वो बना रही है कि अच्छा। हायर मैथ जो अलग हो जाता है, लोअर मैथ अलग रहता है, लेकिन जब हायर लेवल मैथ में जाते हो काफी डिफरेंट हो जाता है ना, तो वो चीज आता है। तो इसलिए फिर इससे आगे हम पर इसका और ज्यादा स्कोप नहीं था, तो फिर क्योंकि एक ग्रेजुएशन के लिए, सिविल सर्विस के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन, मैथ से चूंकि उस समय तक मुझे 12th वाला मैथ पसंद आता, तो मैं उसी में कंटिन्यू की, इसलिए ये रहा। आगे चल के थोड़ा जो ग्रेजुएशन का मैथ होता है, वो जो 12th वाले मैथ से हल्का भिन्न हो जाता है। ठीक है, बाकी तो उसमें सिविल में क्या रखी हुआ? थी मैथ क्या? नहीं, 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 इसका तो वो ये यूपीएससी की तैयारी में क्या ऑप्शनल था बाबू? यूपीएससी की तैयारी? सर यूपीएससी में सोशियोलॉजी लेना था, लेकिन वो हो नहीं पाया कभी। ठीक है। नहीं तो ठीक है, तो तुमको ये बताना भी नहीं है कि यू रिमेन्ड फोकस्ड ऑन जेपीएससी, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन यू मैथ को शुरू Then 12th के बाद मैथ रख लिए, क्योंकि मैथ उस समय तक था, उसके बाद रख लिए। ठीक है, एक ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट तो चाहिए। इसको मैंने बतलाया ज्योति कि मैथ जब मैं 12th में थी तो मुझे मैथ अच्छा लगता था बनाने। So my parents suggested कि you need to take math. My parents or my friends had taken math, so I उसके बाद मैथ जब ले लिया, then I realized, then I inspired towards preparing for civil services. I prepared and then I realized कि math will not help me in further preparation. And 12th का मैथ से ग्रेजुएशन का मैथ थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगा, तो आई फोकस्ड ऑन जीएस एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है? सर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अप टू ग्रेजुएशन वो थोड़ा सा वैसा था, मतलब जैसे कि अभी थोड़ा सा आंसर करने में इसलिए क्योंकि मेरा मैथ के साथ कनेक्शन नहीं है बहुत लंबे टाइम से, तो ऐसा भी है कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू अभी मैथ्स का ले भी नहीं पाए हैं, बाकी सारा करंट एंड ऑल के प्रिपरेशन के चक्कर में। तो थोड़ा अगर ओवरव्यू ले लिया जाए, फिर अगर हम ऐसा बोले कि हाँ इंटरेस्ट था मेरा अप टू ग्रेजुएशन, लेकिन हमको फिर सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करना था इसलिए मैथ्स को छोड़ दिए, तो ये भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि सर देखो, बेसिक रीजन यही था कि पेरेंट्स ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किए थे। इंटरेस्ट को तुम नहीं समझ पा रही है। मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट प्यार, इंटरेस्ट का मतलब डेप्थ। इंटरेस्ट अगर मेरा होगा तो मैं उसका इवैल्यूएशन कर पाऊंगा, मैं उसके हर चीज को जानूंगा। वो इंटरेस्ट नहीं था, वो फैसिनेशन था। वो बचपन में मैथ्स के प्रति अट्रैक्शन था, हम मैथ्स को बनाते थे, हमें मजा आता था। इंटरेस्ट होता तो हम उसको छोड़ते भी नहीं, अभी भी प्रैक्टिस करते। हो सकता है कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करते, हो सकता है कि तुम मैथ्स आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तैयारी भी करती, अगर तुम्हारा मैथ्स में सही में इंटरेस्ट होता तो। मैं आज तक हिस्ट्री छोड़ नहीं पाया, बिलीव करोगी? आज तक हिस्ट्री छोड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरा हिस्ट्री में मैं सोचता था कि मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएशन लूँगा, मुझे घरवालों ने लेने नहीं दिया, ज़बरदस्ती इकोनॉमिक्स दिलवा दिया। तो मेरा पहला प्यार हिस्ट्री ही रहा, पहला इंटरेस्ट हिस्ट्री ही रहा, आज तक मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मेरे पास इकोनॉमिक्स से ज़्यादा बुक्स हिस्ट्री के। मुझे अच्छा लगता है उसको खरीदना और पढ़ना, ये हुआ इंटरेस्ट। आज मुझे हिस्ट्री में कुछ भी पूछो मैं बताऊँगा, भले ही मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। इसलिए इंटरेस्ट से मुझे ओके सर। थोड़ा-सा दिक्कत है। तुम अभी एक गूगल मीट और होगा
और भी लोग जुड़े। मेरा तो देखो अपना टीचर का एक्सपीरियंस है, मैं तुम जैसे बच्चों से मिलता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, वो बताता हूँ। सर भी हैं, इनको भी इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस है। एक इंडिविजुअल एक इंटरव्यू दिया बच्चा और बन गया डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बन गया, तो उसका भी एक व्यू पॉइंट है, उसको भी सुनना। लेकिन मेरे समझ से इंटरेस्ट यही होता है, इंटरेस्ट अगर होता तो तुमको डेप्थ होता। मैथ्स में नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता है ये तुम नहीं बता पाए, है ना? अगर तुम सर तैयार ये भी कर एक्चुअली हम कर लोगी, रहे थे अगर लेकिन तुम हमको तैयार भी कर लोगी ना तो तुम कहीं फँस जाओगी। और ये जो है ना, ये अच्छा बिहार झारखंड में मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ होता है कि उनको साइंस के लिए फोर्स किया जाता है कि व्हेन आई वाज इन 12th आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैथ्स, आई यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स अलजेब्रा, है ना? तो माय पेरेंट्स सजेस्टेड टू टेक मैथ। Then in graduation, I realized the importance of GS for civil service preparation. From there, I focused towards the preparation. So I left math. मुझे लगता है ये जेन्युइन, ये है रीजन जेन्युइन जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा है या सही में मैथ में इंटरेस्ट? मैथ्स में एक्चुअली इंटरेस्ट था, सिविल सर्विसेज की वजह से ही मैथ्स को छोड़े, उसके बाद से कभी हम उसको टच नहीं कर पाए। तो तो उस ये टाइम तक इंटरेस्ट ऐसा था नहीं कि था मैथ्स ना? में मेरा स्कोर इज लाइक 96% तक जाता था। हाँ, तो अच्छा ये नहीं सर, अब तुमने उसको मतलब छोड़, एग्जैक्टली इट मे बी पॉसिबल कि हम इंटरेस्ट और उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट तुम सर्च करना इंटरनेट पर मैथ्स में इंटरेस्ट। ज्यादा इंटरेस्ट हमको सिविल सर्विसेज में रहा। इंटरेस्ट को तुम सर्च करना। इंटरेस्ट का मतलब एवरग्रीन, उसमें तुम्हारा वो छूटना नहीं था। तुमने जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, इसका मतलब उसको तुमने छोड़ दिया, उसको ध्यान नहीं दिया, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रह गया। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा देखना, बात करना, मैंने ये सिखाया है ये बताना, और भैया से भी पूछना जो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी से जिनका कराऊँगा तुम्हारे साथ, वो उससे पूछना, और दोस्तों से पूछना कि विभास सर ने ये कहा है मुझे बोलने। देखना वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हें, ठीक? ठीक मतलब है सर। इस मुद्दे पर अभी हम लोग और बात करेंगे। ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, ओके ठीक है? ओके ओके। सर। और रामगढ़ में रजरप्पा के मंदिर के बारे में कुछ बतलाओ मुझे। Sir, Rajrappa is Saktipeeth. There are total, sir, I'm not very much sure. If I can guess, there are 9 Saktipeeth, 9. तो रजरप्पा इज सर सॉरी सर, वो एक्चुअली नंबर ऑफ शक्तिपीठ हम भूल गए हैं, थोड़ा उसको मैंने प्रिपेयर किए तुमसे थे। पूछा रजरप्पा मंदिर के बारे में बतलाओ, तो तुम शक्तिपीठ, तुम बोलो कि ठीक है वन ऑफ द शक्तिपीठ, तुम्हें नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है सर। वन ऑफ द अच्छा सर, शक्तिपीठ। एक क्वेश्चन और है सर, लाइक मतलब अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिंदी तो में ही हिंदी आंसर में ही करना है? जवाब देना है, यस। अच्छा सॉरी सर। रजरप्पा सर एक शक्तिपीठ है, भारत में बहुत सारे शक्तिपीठ है, उसमें से एक रजरप्पा भी शक्तिपीठ है। रजरप्पा भैरवी नदी के किनारे पे स्थित है, और वहाँ पे हर साल और खासकर नवरात्रि के समय पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वहाँ पे मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट है वो बहुत अच्छा, और वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है झारखंड गवर्नमेंट को। ठीक है। ये वहाँ पर किस भगवान की मूर्ति है? अ, सॉरी सर, ये एग्ज़ैक्टली कौन-सी देवी हैं वो नाम याद नहीं आ रहा। छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर। अच्छा छिन्नमस्तिका, सॉरी सर, छिन्नमस्तिका माँ। छिन्नमस्तिका किसका रूप है? छिन्नमस्तिका माँ दुर्गा। काली का रूप, सभी रामगढ़ की लड़की है। एक तो छिन्नमस्तिका के बारे में पता नहीं, बताइए थोड़ा-सा रामगढ़ देखो सबको। छिन्नमस्तिका माँ काली का रूप है, और दूसरा वो छिन्नमस्तिका माँ जो है वो किसके शरीर पर वहाँ पर गई हो कभी या नहीं गई हो? गए हैं सर, 1 2-3 बार गए हैं। हाँ, तो छिन्नमस्तिका माँ का जो मंदिर है, उसमें हुँ। मंदिर मूर्ति है, वो किसके ऊपर पैर रखी हुई? शिव जी के ऊपर होंगी फिर, अगर काली माँ का रूप है।
काली जी शिव के ऊपर रखती हैं और छिन्नमस्तिका माँ का जो मूर्ति है उसके नीचे कामदेव और रति उसके पैर पे रखी हुई है। माँ जो छिन्नमस्तिका है वो कामदेव और रति मतलब जो मनोकाम वो होता है ना, कामदेव का मतलब कामदेव और रति का मतलब डिजायर। प्रोक्रिएशन, उसको वो उस पे लात रखी हुई है। और अच्छा। खून की धारा जो है वह अपना गर्दन काटी हुई है और खून की 3 धाराएँ गिरती। तो एक उन्हीं के मुँह में जा रहा है जो गर्दन कटा हुआ है उसी में, और एक बगल में और एक इस साइड दाएँ और बाएँ 2 और देवी हैं, उनका भी कुछ नाम है, वो भी सर्च कर लेना। रामगढ़ से हो, रजरप्पा को तो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? ओके और सर। रामगढ़ में कौन-कौन सा फैक्ट्री है? रामगढ़ का अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाओ। सर रामगढ़ का इकोनॉमी जनरली डिपेंड करता है माता माइनिंग पे, माता इंडस्ट्रियल पार्वती सेक्टर का पे। रूप माना जाता है। माता रहते हैं तो गुलशन बस्ती माता का ये माता पार्वती का अवतार है, माँ छिन्नमस्तिका। वन ऑफ द अच्छा। शक्तिपीठ तभी तो हुआ, उनका कुछ न कुछ अंश यहाँ गिरा होगा ना हाँ माँ हाँ पार्वती का। हाँ हाँ, सती सती वाला जो, हाँ ठीक है सर। 10 आदि शक्ति में छठा अवतार छिन्नमस्तिका माता का माना गया। ठीक है? पढ़ लेना इसको। ओके। हाँ, बोलो ठीक है। रामगढ़ का इकोनॉमी के बारे हाँ, में बतलाओ। रामगढ़ का इकोनॉमी सर मेनली डिपेंड करता है माइनिंग सेक्टर पे, इंडस्ट्रीज पे और टूरिज्म पे। मेजर डिपेंडेंसी है इस पे। मेजर इंडस्ट्रीज है सर जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, सीसीएल, बिहार फाउंड्री फोर्स लिमिटेड, रुंगटा कोल एंड सन्स समथिंग है सर। और ठीक है। टूरिज्म में सबसे ज़्यादा फेमस है पतरातू वैली। उसके अलावा सर पलानी वाटरफॉल, मसमोना, फिर ये रजरप्पा। ठीक है। अ, उसके अलावा उस इतना मतलब अगर वो लोग ऐसा ठीक है बोल दें काइंड ऑफ तो हमको स्टॉप हो जाना है वहाँ पे। बिल्कुल। ओके सर ठीक है। वेरी गुड। और उसके बाद ये बताओ कि यू हैव मेंशन्ड योर हॉबी ट्रैवलिंग, और तुमने अच्छे यस से सर। बताया भी कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। इसका मतलब ठीक है, ट्रैवलिंग हॉबी है। तो रिसेंट में जब तुम सल्फरनी गई थी, तो व्हाट यू लर्न, व्हाट यू ऑब्जर्व देयर? सर सलपर्णी जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, बीच में वो लेक है, वहाँ बहुत ज़्यादा पीस है, बहुत तरीके का प्लांट स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है सर, बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लोज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज ठीक-ठीक है। एक सिविल सर्वेंट के नज़रिए से तुमने उसको ऑब्जर्व किया, वो अगर एंगल डाल दो, तो वो भी और अच्छा रहेगा। हुँ, जैसे जो जैसे तुमने टूरिस्ट इन्फ्लोज़ को बढ़ाया जा सकता है। जैसे सल्फरनी में तुमको कुछ कमी दिखा, वहाँ पर कोई शॉप रेस्टोरेंट का कमी होगा, हाँ, वहाँ वही पर टूरिस्ट उसको एक इन्फ्लोज़ नहीं होने का मेन रीज़न ही यही है कि वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा खाने-पीने का अच्छा वो नहीं है, फिर ऐसा उसको डेवलप नहीं किया गया है प्रॉपर जिससे टूरिस्ट इन्फ्लोज़ ज़्यादा आ सके। और तो ज़्यादा लोगों को सलबर्नी के बारे में पता भी नहीं है। लोग हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानते हैं बट नॉट अबाउट सलबर्नी। यही चीज़ मैं जानना चाहता था। जैसे कि एक सिविल सर्विस सर्वेंट का नज़रिया क्या होगा कि ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो देख रहा है, वाह! कितना बढ़िया है। लेकिन देखो, इसको अभी तक लोगों ने यूज़ नहीं किया, लोगों ने देखा नहीं, अवेयरनेस नहीं है। इससे लोग और कमा सकते थे, है ना? तो यस। अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होना चाहिए, तो ठीक है। और हॉबी और कुकिंग है ना तुम्हारा? कुकिंग और वॉचिंग वेब सीरीज़ सर। ठीक है, तो कुकिंग में कोई ऐसा रेसिपी जो तुम्हें बहुत पसंद हो और तुम बार-बार कुक करती हो? यस सर, हैदराबादी बिरयानी, वेज हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। कैसे बनता है वो? सर उसमें पालक चाहिए होता है जो उसका मेजर रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसका कलर और जो फ्लेवर होता है वो पालक पे डिपेंड करता है। वेज हैदराबादी सर। और ये चावल और कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स और पनीर वगैरह, काजू जो भी ऐड करना चाहें, वो सब है। और अच्छे फ्लेवर के लिए उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट वो ज़्यादा अमाउंट में डालना होता है। कैसे बनाते हैं?
पहले सर पालक को बॉईल करके उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चावल को अलग से बॉईल करके बिल्कुल फ्रेश बॉईल करके उसको रख लिया जाता है अलग। देन हम लोग उसका सारा मसाला तैयार करते हैं। पालक को लाइक धोते हैं या नहीं धोते? यस सर, वॉश करके, प्रॉपर वॉश करके देन बॉईल किया जाता है। तो और फिर कैजुअल सर अप्रोच में क्यों बता रही हो? बेहतरीन शेफ के जैसा बताओ। अच्छा ऐसे बताना है, हमको लगा और क्यों कंसाइज़ नहीं? वे में बताना क्यों है। नहीं? मतलब जब वो पूछा है, रेसिपी पूछ रहा है, हम बिना धोए पालक डाल देंगे। ओके सर, हमको लगा कंसाइज़ वे में बताना है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर जब रहे थे। हम पालक लेते हैं, पालक को पहले धोते हैं फिर और इसको आप बताओ बढ़िया से बेहतरीन एक लगे हाँ, तो आप कोई ये ब्लॉग-व्लॉग भी बनाते हो, वीडियो-वूडियो भी बनाते हो कुकिंग का या सिर्फ़ बनाते हो और नहीं खाते हो? सर, सिर्फ़ बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। अच्छा, खिलाते हैं, ठीक है, बनने के बाद खिलाएँ, फिर खाना खाना है मुझे, ठीक है। ठीक है सर। वेब सीरीज़ और कौन-कौन सा देखते हो? क्या पसंद है? सर वेब सीरीज़ मोस्टली इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए, थ्रिलर बेस्ड होना चाहिए, वैसा वेब सीरीज़। अच्छा, कौन-सा वेब सीरीज़ देखते हो तुम जो बहुत पसंद हो तुम्हें? कौन-सा देखा है अभी रिसेंट? सर रिसेंट में अभी एक शेखर होम्स था, जो कि बेसिकली शर्लक होम्स से थोड़ा-मोड़ा इंस्पायर्ड था। ओके, इंटेलिजेंस बेस्ड था वो। उसमें क्या स्टोरी है? स्टोरी सर वो लाइक 7-8 पार्ट्स में वो सीरीज़ है और हर एक पार्ट की एक अलग स्टोरी है और उसमें जो लीड रोल में है केके मेनन, वो जो है केसेस को सॉल्व करते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड लाइक ज़रा-ज़रा हिंट को मैच करके केसेस को सॉल्व करना और लोकल पुलिस की हेल्प करना, इस तरीके से सर। तो व्हाई यू हैव नॉट चूज़न जेपीएस? Sir, because my temperament of communicating, interacting people, and connecting people. Also, sir, I do not prefer field work much. So, sir, I do not opted for. नहीं, जैज़ का कार्यक्षेत्र ज़्यादा है। बताइए सर। ये ठीक बोल ठीक बोल जैज़ का कार्यक्षेत्र ज़्यादा है, जैज़ में स्कोप काम करने का ज़्यादा है, डेवलपमेंटल प्लान को हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, लोगों का भला ज़्यादा कर सकते हैं। जेपीएस मुझे उतना ही पसंद है जितना जैज़, लेकिन क्योंकि जैज़ का कार्यक्षेत्र बड़ा है इसलिए मैंने जैज़ डाला। मुझे अगर जेपीएस भी मिलेगा तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। क्यों अपने आप को लिमिटेशन दे दूँ? कौन-सा प्रेफ़रेंस है मतलब तुम्हारा जेपीएस? कितने नंबर पे डाली हो? जीपीएस फोर्थ है सर, फोर्थ अब है। अच्छा, तब तो तुमसे एक सेपरेट सवाल बनेगा। तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन फाइनेंस स्टेट पुलिस सर्विस 4th में डाली हो। ठीक है, तब भी इसको तुम जस्टिफ़ाई कर सकती हो कि हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन का वाइड एरिया है। आई हुँ, आई मुझे इन प्लानिंग और डेवलपमेंटल रोल्स प्ले करना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहूँगी, फाइनेंस सर इसको जस्टिफ़ाई कैसे करें कि पुलिस को 4 में डालें? सब एक ही ग्रेड का है ना, तो बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए पहला चॉइस था, उसके बाद बाकी में चूँकि पुलिसिंग का मुझे आइडिया नहीं था। एजुकेशन का है कि भाई हम कॉलेज गए थे तो कॉलेज या स्कूलिंग कैसा होता है वो आइडिया था, तो उस कारण मैंने उसको वो एक पुलिसिंग का हाँ, थोड़ा पीछे तो है कि देखो उतना तो मैक आउट कर लिया है कि बहुत लोग आजकल ये करता है, पुलिस को पीछे कर देता है कि सर मतलब मेन रीज़न पुलिस सर्विस को पीछे डालने का यही था कि फील्ड वर्क वाला वो थोड़ा काम है और वो मेरा प्रेफ़रेंस नहीं है। तो कोई अब बात इतना ज़्यादा नहीं, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम आज रात में डीवाईएसपी से पूछना कि मैंने 4th ये क्योंकि पिछले बार ऐसे क्वेश्चन्स हुए हुँ, कि तुमने अरे ओके। सब सब लोग आ रहे हैं, सब जेपीएस भर रहे हैं, क्यों जेपीएस भर रहे हो भाई? किसी से पूछ रहा है क्यों? अब इस बार जैस भरने का जो एग्ज़ैक्ट रीज़न है वो है नंबर ऑफ पोस्ट उसमें ज़्यादा है, सभी लोग यही देख के भरा है। तो हुँ। पूछे फिर ये इस तरह के क्वेश्चन चूँकि पूछे गए हैं, तो तुमसे पूछेगा कि जेपीएस क्यों? चौथे नंबर पर क्यों? सीट कम था जेपीएस में क्या? इस हाँ, तो बोल सकती हो और क्या क्या दिक्कत है? भाई हम जॉब के लिए आ रहे हैं तो उसमें कोई वैसा मेजर गलत बात नहीं है। क्योंकि सीट कम थी तो जिसमें ज़्यादा सीट था उसको पहले प्रेफ़रेंस दिया। इसको इसको हम लोग एक बार और रात को डिस्कस करेंगे। तुम्हारे लिए अभी 2 चीज़ें अनफोल्ड हैं, क्या-क्या? पहला इंटरेस्ट वाला और दूसरा व्हाई पुलिस सर्विस एट 4th पोज़ीशन ठीक है? 2 क्वेश्चन्स पे अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे।
तो अभी हम लोग तुम्हारे जो प्रोफाइल पे बायोडाटा पे चर्चा किए, तो मैथ का सर सवाल पूछे और हम लोग रामगढ़ पूछे, रजरप्पा के बारे में तुम्हारा तैयार होना चाहिए और इसका इन सब सारे डायमेंशन को तुम चेक करना। अभी सारा को इसी क्वेश्चन के आधार पर तुम कुछ और प्रिपेयर करना और रात में फिर हम लोग इस पे बात करें, ठीक है? कुछ और सर? ओके नहीं ठीक है, हल्का सा मैथ थोड़ा सा देख लेना, नंबर्स वगैरह तो बेसिक देख लेना मैथ का, ठीक है? बेसिक और सर वो इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी ठीक है? हाँ ऐसा वो कोई इशू वो नहीं, इशू नहीं आपको सर, कोई दिक्कत नहीं। वो इशू भी नहीं है, कहीं गड़बड़ होते हैं तो कोई इशू भी नहीं है। तो कुकिंग का देख लेना, वेब सीरीज ठीक है, वेब सीरीज में कुछ डेप्थ में भी जा सकता है और बाकी सब तो ठीक है। इसी आधार पर तुम अभी कुछ तैयारी करो, रात को फिर एक बार गूगल मीट करते हैं, ठीक है? वहाँ कुछ क्वेरीज भी देख लेना, ये 2 तो अपना रखो और एक बार हम लोग ऐसा जैसे इस तरह से जब तैयार हो गए ना, तो वॉक इन के लिए आओगे तो जो पूछेंगे जवाब दोगे लगातार, उस समय तुरंत हम लोग फीडबैक थोड़ी देंगे। तो लास्ट में जब फीडबैक मिलेगा तो वो तुम्हें काम आएगा। तो इस तरह से इन एरियाज पे भी तुम काम करो, ठीक? ओके सर, चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू।